अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के मैं इस चीज़ को लेक्चर तो नहीं कहूँगा, बल्कि मैं एक इसको इन्फॉर्मेटिव सेशन कहूँगा जो कि बहुत ही कैंडिड स्टाइल में होगा और इट इज़ अ वेरी इजी गोइंग लेक्चर। और क्योंकि ये मेरे कंटेंट लिस्ट में तो नहीं था, बट ड्यू टू द डिमांड और जब से ये तमाम कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुई है और हमारे पास लॉकडाउन की सिचुएशन स्टार्ट हुई है, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जहाँ पर जॉबियंस हुए हैं, उसके साथ ही हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। स्टूडेंट्स को कॉलेज की तरफ से या उन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जहाँ पर वो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, वहाँ से उनको एक लॉगिन और लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया गया था। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, लेकिन आज पर्टिकुलरली मैंने जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करनी है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो अपने इंट्रोडक्शन को इतना ज़्यादा लंबा नहीं करते एंड आज के इन्फॉर्मेटिव सेशन में हम लोग सीखेंगे अबाउट हाउ टू लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सॉफ्टवेयर थ्रू मोबाइल, थ्रू योर लैपटॉप पीसीज। और उसके लिए मैं तमाम जो है वो एक शॉर्ट वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस हम इसको थोड़ा सा देखते हैं मेरे स्टाइल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सीख ले द टेक्नोलॉजी। Don't pick me up, that's a start. Always poppin', Zan, yeah. My body hurts, can't stand. Restart system. Technology, its impact on your world of work. The world of work is constantly changing. Almost 65% of the children entering college will be doing new jobs that don't yet exist. Technologies that haven't yet been invented will solve the problems that aren't even problem yet. You are a part of fourth industrial revolution. Technology is changing effectively, as you most things are doing in life, with the impact that how you work in future. So what you think you have modern and advanced things now might look old and slow in 5 to 10 years of time. Think about how iPhone is changed to past 10 years. So just imagine what is the future of mobile technology could be. New roles are emerging all the time. Just think about the jobs of today could not exist 10 years ago. Jobs such as app developer, social media consultant, and 3D printing engineer. Some of the technical predictions of the future include 10% of the world population would be wearing clothes connected to the internet, such as online shopping. By 2026, smart clothing will be available that change their color easily. Not just color but also the shape, which keeps you cool. Artificial intelligence already exists in our everyday life. As some humans are replaced by robots nowadays, think about those as space robots or controlling robotic arm during medical surgery. Within 15 years, some things artificial intelligence and robots are expected to do include driving cars, shopping, cooking, delivering items, factory work, and have conversations. Some of the jobs we are doing now are considered as high risk during in future. All the jobs are now is different and have a technical point of view in it. So what are we waiting for? We need to be upgraded. Employees in the future need to be online all the time. Although artificial intelligence cannot do most of the things like emotional intelligence, critical thinking, so manpower is needed. Some of the jobs which require a manpower is artificial intelligence, Java developers, cybersecurity specialists, coders, big data analysts, avatar designers, and software engineers. So they cannot be neglected easily. Just think, digital technology jobs are on the rise. So we have to learn, we have to adapt new things, we have to adapt the technology to be succeeded in this environment. Nowadays, latest software are developed just for the ease of human beings. Thus, opportunities to work in the digital sector in Wales will be expanding. The digital sector creating jobs are 2 times more than the non-digital sector's jobs. These jobs are usually highly skilled and highly paid. The online average advertised digital salary in the UK is £51,000. That is a lot of money. So we have to be more digitalized now. So have a think. Would you like a career linked to the digital work? I'm sure your answer will be yes now.
ओके जी, सो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ हाउ टू सेटअप योर अकाउंट। हमारे कुछ बच्चों को अभी यही नहीं पता कि हमने अकाउंट को किस तरीके से सेटअप करना है और कहाँ पर जाके हम लोगों को लॉग इन करना है। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू शो यू अ मोबाइल स्क्रीन जिस पे मैं आपको ये तमाम चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरीके से इसको सेटअप करना है। ठीक है जी, सो इट इज़ हाउ टू सेटअप योर अकाउंट ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। आप इस तरह करेंगे जी कि सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे और वहाँ पर आप एंटर करेंगे vc.pgc.edu.pk। ठीक है जी, आप वहाँ पर ये लिखेंगे दैट इज़ ओनली जब आप ये तमाम चीज़ अपने लैपटॉप स्क्रीन से या अपने पर्सनल कंप्यूटर से यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद मैं फ़ौरन स्विच ऑन करूँगा टू एंड्रॉयड मोबाइल और वो एप्लीकेशन इस एप्लीकेशन से ज़्यादा आसान है। एनीवेज़, तो आप यहाँ पर ये लॉगिन करेंगे और इस फ़ौरन लॉगिन के बाद आप लोगों को एक स्क्रीन नज़र आएगी जो कि साइन इन की स्क्रीन है। आप इस साइन इन की स्क्रीन के ऊपर अपना वो वाला आईडी जो आपके कॉलेज ने आपको प्रोवाइड किया है और वो सिर्फ़ आपका अपना आईडी होगा, उसको आपने पुट करना है और वो यहाँ पर आप लिखेंगे जिसके आगे @समथिंग आता है, वो आपने यहाँ पर पुट करना है। देन यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड देना है। जैसे ही आप ये पासवर्ड दे देते हैं और फिर आपने क्लिक करनी है ऑप्शन ऑफ साइन इन। सो साइन इन की ऑप्शन को क्लिक करते ही आपसे यहाँ पर अगर ये आप रिकवर करना चाह रहे हैं तो रिकवर करने के लिए वो आपसे ओल्ड पासवर्ड पूछेगा, लेकिन ओल्ड पासवर्ड की यहाँ पर फ़िलहाल आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जी, इफ़ यू वांट कि आपका पासवर्ड यहाँ पर आप चेंज करना चाहें तो आप उसे रीसेट अ पासवर्ड की ऑप्शन में जाके आप अपना न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना ओल्ड पासवर्ड डालें, उसके बाद अपना न्यू पासवर्ड सेट करें जो आपको याद रहे, हमेशा आपके लिए इजी हो। रिपीट न्यू पासवर्ड करें। ये वाली ऑप्शन बच्चों के लिए जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है और आप इसको साइन इन पर क्लिक कर दें तो ये आपके पास जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ है कि अगर आपके पास जैसे ही आप साइन इन का बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो कहता है कि मोर और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड दैट कैन ओनली बी यूज टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो इस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपके पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करते हैं तो ये कुछ ऐसी ऑथराइजेशन अकाउंट की कुछ ऐसी ऑथराइज्ड सेटिंग्स हैं जो कि हर वक्त हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपसे वो पूछे। तो यहाँ पर आप अपना एरिया डाल देंगे जी। उसके बाद आपने चाहते हैं कि आपको अपना नंबर आप डालेंगे एंड देन इफ़ यू वांट कि आपको कॉल की जाए वेरिफिकेशन के लिए या टेक्स्ट की जाए या मेल किया जाए, तो ये 3 ऑप्शन है। मैं यहाँ पर ज़्यादातर टेक्स्ट की ऑप्शन जो है वो दबाता होता हूँ। जैसे ही आपको टेक्स्ट आएगा वहाँ पर आपके पास एक कोड आ जाएगा, उस कोड को आप यहाँ पर डालें और आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। देन यू जस्ट हैव टू फिनिश दिस सेटअप और आप अब अपने पर्सनल कंप्यूटर से जहाँ पर आपका जीमेल है या आपने जो आपके कॉलेज ने मेल दिया है, यहाँ से आप हमेशा साइन इन रहेंगे। साइन इन के बाद आपको ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की एक ऑप्शन जो है वो टीम्स बनी हुई नज़र आ जाएंगी। इसमें आपके पास उर्दू की टीम, इंग्लिश की टीम, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की टीम नज़र आ रही है। देखें, ये जनरली टीम्स हम के नाम यहाँ पर रखे हुए हैं, लेकिन फॉर एन इंस्टेंट जिस तरह अगर कोई कॉलेज में पढ़ता है, स्पेसिफिकली मैं अपने कॉलेज की बात करूं, तो यहाँ पर आपको क्लास के नेम्स होंगे जो कि मैं यहाँ पर लेक्चर में नहीं ले सकता, लेकिन वो क्लास के नेम्स आप लोगों को विजिबल होंगे। यू कैन ओनली कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और यू कैन DM ऑन इंस्टा। अगर आप मुझसे वहाँ पे पूछ लेते हैं तो मैं आपको आपकी क्लास के पर्सनल नेम भी बता देता हूँ। वैसे आपने वो फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं तो आपको पता है कि आपके क्लास के नेम्स या कोड्स क्या हैं, तो आप उन कोड्स पे जाके क्लिक करेंगे एंड यू ज्वाइन द मीटिंग और हम आपके सामने वहाँ पे लाइव आ जाएंगे। तो ये तो तरीका था कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन से किस तरीके से ऑनलाइन हो सकते हैं। यहाँ पर एक और तरीका भी है कि अगर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन के साथ ही आप अपने पर्सनल डेस्कटॉप के ऊपर आप चाहते हैं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो है वो एक एप्लीकेशन बन जाए, तो यू कैन डाउनलोड द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, लेकिन वो यहाँ पर अभी आपको इजीली समझ में नहीं आएगा। सो डाउनलोड के ऑप्शन के लिए हम चलते हैं मोबाइल की तरफ। सो यहाँ पर मैं मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर देता हूँ, सो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि आपने
क्या जो है वो यहाँ पे करना है। ओके जी, ओके सो यहाँ पर आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट आइकन्स हैं जो कि मेरी कुछ फेवरेट एप्लीकेशंस हैं। तो आपने यहाँ पर टीम्स की एप्लीकेशन जो है वो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर आप यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ये आपके पास आइकन होगा, ये आप एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सो ये जैसे ही मैं यहाँ पे डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास आपके डेस्कटॉप पे जिस तरीके से साइड पे आइकन्स बन रहे थे, यहाँ पर नीचे की तरफ आइकन्स बन रहे हैं और ऊपर की तरफ क्लासेस बन रही हैं। सो मैं इसको एक दफ़ा आपको लॉग आउट कर कर भी दिखा देता हूँ कि आपने अगेन इसमें से जो है वो लॉग इन कैसे करना है। सो लेट मी जस्ट लॉग आउट। सो मैं इसको साइन आउट करके आपको अगेन साइन इन होके दिखाता हूँ, लेकिन आपके पास आपका अपना यूज़र आईडी होगा, पासवर्ड होगा, तो आप अपने तरीके से इसको साइन इन करेंगे। ओके सो मैं यहाँ पर साइन इन करने लगा हूँ अपने अकाउंट को। तो ये मैंने अपना इसमें जो है वो लॉगिन आईडी डाल दिया, उसके साथ मैंने जैसे साइन इन करूँगा मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्योंकि सेव है मेरे मोबाइल में, तो ये आपको कुछ टाइम के बाद आपके टीम्स के जो एप्लीकेशन है उसमें साइन इन कर देगा। ओके फॉर पासवर्ड आई हैव टू पुट माय पासवर्ड। और इस पासवर्ड को मैं थोड़ा सा मॉफ कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल में हमेशा ये एप्लीकेशन यूज़ करनी होती है, तो मैं इसको रिमेंबर ऑल द टाइम करूँगा। ये कुछ इनिशियल सेटिंग्स आपके पास यहाँ पर आ रही हैं जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा, इसको आप नेक्स्ट करते जाएं एंड ये आप गॉट इट आप कर दें, और ये आपके पास जो है आपका जो है वो न्यू अकाउंट से आप जो लॉगिन हुए हैं वो आपके सामने है। ओके सो इसमें आपके पास जो आइकन्स हैं वो नीचे बने हुए हैं, और इन आइकन्स में आप देखिए आपके पास एक्टिविटी है, चैट है, टीम, असाइनमेंट, कैलेंडर एंड मच मोर। तो हम देखते हैं कि हमने इसको अच्छे तरीके से कैसे समझना है, क्योंकि लॉगिन का जहाँ तक मसले थे वो तो मैं इजीली आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, लेकिन अब लॉगिन के बाद आपने किस तरीके से ज्वाइन कैसे करनी है मीटिंग, वो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सो देखिए जब भी हम एक टीचर जो है मीटिंग जो है वो ज्वाइन करता है तो आपकी स्केजुलिंग जो है वो इस टीम के ऊपर आ जाती है। फॉर स्केजुलिंग में मोस्ट ऑफ द बॉयज़ जो कि मेरे साथ लिंक्ड हैं और जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर या उनके पर्सनल ग्रुप्स के अंदर उनके टाइम टेबल जो है वो मेंशन कर दिए हैं। तो आप वो टाइम टेबल वहाँ से जाके देख सकते हैं, और अगर वो टाइम टेबल आप वहाँ से जाके देख रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर टीम्स के ऊपर आएंगे एंड लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक मेरे पास जो है वो फेक क्लास बनी हुई है, तो मैं उस फेक क्लास को यहाँ से जाकर लेक्चर जो है वो ज्वाइन करता हूँ। सो लेट्स सपोज आपके पास अभी टाइम हुआ है एक क्लास का, और वो क्लास जो है वो मेरे नाम की क्लास है विच इज़ अहमद बेग फ़िज़िक्स क्लास। तो आप उसको अपनी क्लासेस में सर्च करेंगे, और बिकॉज़ मैं यहाँ पर ज़्यादा क्लासेस लेता हूँ तो वो इसीलिए ज़्यादा आइकन्स आपको शो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप आपके पास आपकी अपनी एक क्लास है लेकिन सब्जेक्ट्स आपके पास 3-4 हैं तो आपको सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा शो होंगे। ओके जी, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से अपनी क्लास के अंदर जनरल के अंदर आप लोगों ने जाना है, और आप देखिए यहाँ पर ये मीटिंग स्केड्यूल में आपके पास फ़िज़िक्स की क्लास शो हो रही होगी। आपने इस फ़िज़िक्स की क्लास को जाकर और आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। जब आप ये ज्वाइन कर लेते हैं तो दैट मीन्स आप लाइव आ जाएंगे, और लाइव जो है वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि आप वो कुछ इस तरीके से लाइव आ रहे होंगे बिल्कुल सामने, और ये जो लाइव आप आ रहे हैं उसमें मैंने अपने आप को म्यूट किया हुआ है ताकि ये आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज का जो हमारा इन्फॉर्मेटिव सेशन एंड ट्यूटोरियल था दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स,
और आप ये देख चुके हैं कि आप अगर अपने पीसी से यूज़ कर रहे हों या अगर आप अपने पर्सनल मोबाइल से यूज़ कर रहे हों, एंड्रॉयड सेट से यूज़ कर रहे हों, तो आपने उसमें किस तरीके से लॉगिन करना है और हमें किस तरीके से 24 से क्लासेस लेनी है। चूँकि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कल से, इसलिए आज का ये सेशन बड़ा ही ज़रूरी था और ये मैंने बड़ी जल्दी में वीडियो बनाई है ताकि ये आप लोगों तक पहुँच जाए। काइंडली आप इसको देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो मज़ीद मैं वीडियोस के कुछ डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पर लगा दूँगा और कुछ लिंक्स जो है मैं यहाँ पर आपको दे दूँगा। इसके साथ ही मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.